Very good. Question number 2. Here integration is 0 to pi by 2 square root of sin phi cos square phi d phi. Done. Cos raised to phi है, cos raised to phi d phi. So here we will do some modification. It's a 0 to pi by 2 square root of sin phi. है ना, ये सब क्यों कर रहे हैं वो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको खुद से समझ में आएगा, है ना. cos raised to 4 phi into cos phi d phi. ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये cos raised to 4 phi उसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लेंगे. इट्स 0 to pi by 2 square root of sin phi. This cos raised to 4 phi is nothing but the cos square phi raised to 2. So cos square phi is nothing but the 1 minus sin square phi raised to 2. 1 minus sin square phi is cos square phi. Cos square phi raised to 2 is cos raised to 4 phi into cos phi d phi. Done. So now our substitution. Let cos phi equal to t. So differentiation of cos phi will be sin phi. No, minus sin phi. और यहाँ पर साइन है ना तो साइन को कन्वर्ट कर दो, है ना. टेक साइन, सो वी आर गेटिंग cos phi d phi एज ए डिफरेंशिएशन. सो आवर सब्स्टिट्यूशन इज लेट sin phi equal to t. Taking differentiation on both sides, it will be cos phi d phi equal to dt. So cos phi d phi dt, cos phi d phi equal to dt, and this sin phi equal to t. And changing the limit when phi equal to 0, phi equal to 0 implies क्या होगा, sin 0. So sin 0 is 0. So t is 0. Now when phi equal to 0 to pi by 2, when phi equal to pi by 2 implies sin phi by 2. Sin phi by 2 is on y axis, so it's a 1, t equal to 1. So limit will change from 0 to 1 and sin phi will be replaced by t, and this variable phi will replace with t dt. So now our integration is root sin phi, so root t, 1 minus sin square phi, it's a 1 minus t square whole square, cos phi d phi, cos phi d phi is dt. Done. So now this root t is 1 by 2 and here 1 minus t square, इसको expand कर दो, multiply करो, direct simplify, integration करो. Limit is 0 to 1, लिमिट नहीं भूलना है. So here t is 1 by 2, root t is 1 by 2. Here expansion 1 minus 2t square plus t raised to 4 dt. So this is equal to 0 to 1, t raised to 1 by 2 into 1, so t raised to 1 by 2. And पार्ट्स कर दो इसको ना, अलग अलग सेपरेट पार्ट्स कर दो. तो इससे t raised to 1 by 2 dt प्लस 0 to 1 t raised to 1 by 2 और ये 2 कांस्टेंट और ये माइनस है, सो माइनस 2 बार ले लो, t स्क्वायर इंटू t raised to 1 by 2, 2 plus 1 by 2 है ना, तो 5 by 2 होगा. तो इट्स t raised to 5 by 2 dt प्लस 0 to 1 t raised to 4 plus 1 by 2 है ना, 4.5 9 by 2, इट्स t raised to 9 by 2 dt. इसका इंटीग्रेशन सबको आता है, इंटीग्रेशन करो. t raised to 1 by 2, integration of t raised to 1 by 2 is t raised to 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1, so it's a 3 by 2. So t raised to 3 by 2 divided by 3 by 2, limits 0 to 1, minus 2 t raised to 5 by 2 plus 1, so t raised to 5 by 2 plus 1 7 by 2, t raised to 7 by 2 divided by 7 by 2, limits 0 to 1, plus t raised to 9 by 2, so 9 by 2 plus 1,
t raised to 11/2 divided by 11/2 लिमिट्स 0 to 1 है ना। ये कांस्टेंट बार ले लो तो होगा 2/3 बार आ जाए, और यहाँ पर वैल्यू पुट करो t इक्वल टू 1, 1/3/2 1 माइनस 0, ये हो गया 1 है ना। 2/3 इंटू 1 माइनस 2, और इसको बार ले लेंगे तो होगा 2/7, so -4/7। अगेन पुट t इक्वल टू 1, so 1/7/2 1 माइनस 0, so 1, so ये भी 1 प्लस 11/2 बार कांस्टेंट ले ले तो 2/11, और अगेन लिमिट पुट करो t इक्वल टू 1, so 1/11/2 1 माइनस 0/11/2 0, so ये भी 1। so फाइनल आंसर इज 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11, और इसका एलसीएम लेना है। 6 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा शायद। एलसीएम लेना है और उसका सिंप्लीफाई करना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड वन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जैविक कितने लोग आए हैं बताओ तो जरा। वेरी गुड, सब आए है ना। ये कम पड़ रहा है ना, हमारा विकेट कीपर 11 नहीं हो रहा है कभी। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपको बोला था ऐसे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला कोई फॉर्म है तो क्या करना है ना। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, so here our substitution is let x equal to tan t, you can take tan theta, so differentiation dx will be differentiation of tan sec square t dt। done। Now changing the limit, so when x equal to 0 तो क्या होगा, tan t will be 0, x equal to 1 tan 1, so t equal to pi by 4, so this is the changing limit। so now our integration is 0 to 1 sin inverse 2x 2 tan t 1 plus tan square t, और dx को रिप्लेस करेंगे sec square t dt से, sec square t dt। डन। dx को रिप्लेस किया sec square t dt से। नाउ दिस वन 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan square t, ये sin 2t का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा, so this one is sin inverse sin 2t into this one sec square t dt। डन। तो देखो क्या होगा, ये साइन इनवर्स साइन 2t है ना, तो 2 कांस्टेंट बार और ये t रहेगा बाकी, सो 2 0 to 1 t, और ये sec square t dt। टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, आइलेट रूल आ गया, आइलेट है ना। अलजेब्रिक फंक्शन तो t को u मानेंगे और इसको v, क्योंकि sec square t का इंटीग्रेशन भी हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec square t इज tan t, तो जिसका इजीली इंटीग्रेशन हो उसको आप v एज्यूम कर लो, और डिफरेंशिएशन इसका अच्छा होगा तो आप इसको u ले सकते हो है ना। सो नाउ अप्लाइंग अवर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या फॉर्मूला था, है ना, 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर में रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी आएगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे और इसकी लिमिट 0 to 1 अप्लाई करेंगे, है ना। लिमिट चेंज करनी रहेगी, हाँ 0 to pi/4 अप्लाई करेंगे लिमिट, तो इसका इंटीग्रेशन है ना u एज इट इज t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इज sec square t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ u 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 10t और इंटीग्रेशन ऑफ 10t है ना, क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो आंसर, माइनस log mod sec t। डन, ये इंटीग्रेशन हो गया। एंड अप्लाइंग लिमिट्स 0 टू पाई बाई 4 है ना, पूरा इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि वो करने जाएंगे तो वो भी लेंथी होगा सम। सो नाउ अप्लाई लिमिट, फर्स्ट यू टू पुट t इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस, देन यू टू पुट t इक्वल टू 0, दिस 2 इज इन कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में रहेगा है ना। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पुट पाई बाई 4, तो इट्स पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस log mod sec पाई बाई 4। डन, पाई बाई 4 की वैल्यू पुट की, माइनस 2 को साथ में रखते हैं 2, नाउ पुट t इक्वल टू 0, सो 0 इंटू 10 t 0, उसको 0 ही रहने दो, माइनस log sec 0 mod sec 0 है ना। नाउ सिंप्लीफाइड, सो दिस विल इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4 नहीं होगा, यहाँ पर करते हैं है ना। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4, so it's a 1 माइनस log sec पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, sec पाई बाई 4 रूट 2 होगा, so it's a log रूट 2 है ना, माइनस 2 इंटू माइनस log sec 0 cos 0 1 sec 0 1, so it's a log 1, so it's a माइनस log 1 0 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, सो दिस इज इक्वल टू, ये पूरा है ना 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 0, इतना ही बचेगा। और इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा देखो, पाई बाई 4 माइनस log रूट टू का पावर 1/2 होगा, तो 1/2 आगे आएगा, इट्स 1/2 log 2, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई बाई 4 इंटू 2, तो होगा पाई बाई 2 माइनस ये 2 कट हो जाएगा, तो इट्स माइनस log 2, दिस इज द आंसर। क्लियर, बोलो, नो आंसर। कुशल, हर्षिता, जैविक, रुचिराज, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx है ना, इसमें क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू t लेंगे, सो हियर our substitution is x plus 2 equal to t, which implies dx equal to dt. Changing the limit, when x equal to 0, so t equal to 2, x equal to 2 implies t equals to 4, so limits will change from 2 to 4. So now our integration I 0 to 2 नहीं, 2 to 4 2 to 4 x dx, देखो यहाँ पर x को रिप्लेस करना है, तो x क्या होगा, तो यहाँ से हम x लिख सकते हैं, x इक्वल टू टी माइनस 2 है ना, इसको आप x की वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं, और x इज नथिंग बट द t माइनस 2 है ना, x कहीं पर छोड़ना ही नहीं है, तो ये x को रिप्लेस करेंगे t माइनस 2 से, दिस वन इज t माइनस 2, और ये स्क्वायर रूट x प्लस 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ t एंड और dx इज dt, हो गया पूरा t में चेंज। इसको एक्सपांड कर दो 2 to 4 ना, t माइनस 2 इंटू रूट टी, तो t का पावर होगा 1/2, और ये t 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो t रेस टू है ना 1 प्लस 1/2 1.5, इट्स 3/2 माइनस 2 इंटू t रेस टू 1/2 dt, सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन इज 2 to 4 t रेस टू 3/2 dt
minus 2 constant integration 2 to 4 t raised to 1 by 2 dt. तो t रेस टू 3/2 का क्या होगा, प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा पावर में, so इट्स t रेस टू 5/2 अपॉन 5/2 लिमिट्स 2 to 4 minus 2 t raised to 1 by 2, so it's a t raised to 3/2 upon 3/2 and limits 2 to 4. डन. अभी क्या करना है, सिंप्लीफाई. This 5/2 is converted into 2 by 5, so this is equal to 2 by 5 ना, इसको बाहर ले लिया. Now limits t, put t equal to 4, it's a 4 raised to 5/2, 4 raised to 5/2 minus put t equal to 2, so it's a 2 raised to 5/2, 2 raised to 5/2 है ना. पावर एक्सपोनेंट्स इन पावर जो स्टडी किया था ना, उसके कॉन्सेप्ट अभी यूज करने हैं भर भर के. 2 इंटू ये 3/2 को बाहर ले ले तो ये होगा 2/3, सो 2 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3 ब्रैकेट पुट t इक्वल टू 4, इट्स अ 4 रेज टू 3/2 माइनस t इक्वल टू 2, इट्स अ 2 रेज टू 3/2. डन. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन 2/5 एज इट इज. नाउ दिस 4 रेज टू 5/2 इसको कन्वर्ट करना हो ना, तो हमें पता है, क्या पता है, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर को, है ना, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर और इसका पावर 5/2, 2 2 का 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 इज 32 माइनस यहाँ पर देखो है ना 2 रेज टू 5/2 है, तो 5/2 मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 5/2 मतलब 2 प्लस 1/2 है ना. 2 प्लस 1/2 इज 2 2 4 प्लस 1 5/2, ये हो गया 2 स्क्वायर है ना. इसको पावर सेपरेट करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू 1/2, तो 2 स्क्वायर होगा 4 और 2 रेज टू 1/2 होगा √2, so it's a 4 √2, so it's a 4 √2 minus 2 2 जा 4, 4/3. यहाँ पर अगेन 4 को रिप्लेस करेंगे 2 स्क्वायर से, 2 स्क्वायर और 3/2, 2 2 कट और ये 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 इज 8 माइनस अगेन यहाँ पर 2 रेज टू 3/2, 3/2 को लिखेंगे 1 प्लस 1/2, so 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 1/2, so 2 इंटू √2, that is 2 इंटू √2. ये समझ में आया बच्चों, ये समझ में आया? कोई रिप्लाई नहीं करेगा? वेरी गुड, अरे वेरी गुड. 32 2 जा 64, 64/5 माइनस 2 4 जा 8 √2, 8 √2/5 माइनस 32, 32/3 माइनस माइनस प्लस क्या होगा 4 2 जा 8 √2, 8 √2/3. अभी करना है सिंप्लीफिकेशन है ना. √2 वाले साथ में ले लो और विदाउट √2 वाले साथ में ले लो, तो ये होगा 64/5 माइनस 32/3, ये एक टर्म हो गई और ये √2 में से माइनस कॉमन ले लें, ये 8 √2 ही कॉमन ले लो है ना, ये सेम है दोनों में, तो 8 √2 ही कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 1/3 और यहाँ से माइनस 1/5. अभी इसका आगे सिंप्लीफिकेशन करना है, चलो करते हैं, कर देंगे. ये पर एलसीएम क्या होगा 15 एलसीएम 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 1 192, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 60 है ना. एक बार देख लेना इसमें कोई एरर आए तो. 8 √2 यहाँ पर अगेन एलसीएम कितना होगा 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, ये 192 माइनस 60 32, 32/15 प्लस 8 √2, 5 माइनस 3 2, 2/15, 8 2 जा 16 है ना, 16 अगेन कॉमन ले लें, फिर से लिखो 32/15, 16 √2
बाई 15 है ना, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? 16 ले ले कॉमन, 16/15 कॉमन, 16/15 कॉमन, so our answer is 2 plus root 2. डन, 2 plus root 2 is the answer. यहाँ से भी आप रूट 2 कॉमन ले सकते हो ना, और रूट 2 आ सकता है, निकालना हो तो निकाल लो। तो 16√2/15, तो यहाँ पर बचेगा √2 और यहाँ पर बचेगा 1 इज द आंसर। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी का माइक अनम्यूट है ना, मेहरबानी करके म्यूट करो। 5, 0 to π/2, 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। हेलो, चलो ये तो इजी आ गया। क्या करेंगे बोलो? cos है, ऊपर sin है, cos x का ले सब्स्टिट्यूशन, so if you are taking cos x equal to 2, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपको सब्स्टिट्यूशन बोला वही आप कर, अब अपने तरीके से कुछ और ट्राई करो, है ना, और इसको सॉल्यूशन लाने के लिए ट्राई करो, तो क्या दिक्कत आती है वो देखो आप। सो इफ यू आर टेकिंग cos x equal to t, इट्स अ माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt होगा, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। सो इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 0, सो cos 0 होगा, cos 0 1, सो t इक्वल टू 1। एंड इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू π/2, cos π/2 होगा, cos π/2 0, so t equal to 0. So limits 0 to π/2 will change from 0 to 1 only. So now integration, ये माइनस साइन है ना, साइन dx, साइन x dx, तो माइनस dt, तो माइनस साइन आगे, अपॉन 1 प्लस कॉस टी, 1 प्लस टी स्क्वेयर और dx का dt। लिमिट, लिमिट क्या है हमारी? 0 to π, 1 to 0, 1 to 0। डन। सो इट्स 1 प्लस टी स्क्वेयर, क्या होगा फॉर्मूला? टेन इनवर्स होगा, माइनस साइन आगे, टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, सो टी बाय 1, सो इट्स टेन इनवर्स टी ओनली। लिमिट्स 0 1 to 0, पुट द लिमिट, it will be minus tan inverse 0, minus tan inverse 0, minus tan inverse 1, tan inverse 1, tan inverse 0 0, माइनस, ये माइनस था और ये अंदर अंदर माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये माइनस, और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1, so minus minus plus, so it's a plus tan inverse 1, plus tan inverse 1, which is equal to π/4. So our answer is question number 5. Now question number 6. So here integration 0 to 2 dx, differentiation of with respect to x, x plus 4 minus x square, ऐसा करके दे दिया है, कुछ भी दे दिया है ना। कौन सी फॉर्मूला आएगी देखो, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 है, तो इसमें आपको पहले फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ये सब सम्स हमने किए हैं, है ना। पहले जिसको कुछ फॉर्म में लाएंगे ताकि ये इजीली इंटीग्रेशन हो सके। क्या करते थे, है ना, इसको माइनस कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 4 होगा। तो हियर टेकिंग माइनस कॉमन, इट विल बी माइनस, यहाँ पर नहीं अंदर ही रखो, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐड प्लस करना पड़ेगा। सो माइनस कॉमन, इट्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। डन। यहाँ हियर you have to take the coefficient of x, which is minus 1, divided by 2 and take it square,
देर इज 1/4। इसको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाने के लिए 1/4 ऐड करना है और इसको 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। मेकअप ऋषिराज, याद आया कुछ? इट्स dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 ऐड करेंगे, -4 माइनस 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। जो इसके पास है, जो भी लिया है उसको वापस कर देना है। तो दिस इज इक्वल टू 0 to 2 dx minus, now here this is perfect square trinomial, x square minus x plus 1/4 क्या होगा, x minus 1/2 होल स्क्वायर, है ना। ये माइनस को ऐसे रखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये होगा 4 4 जा 16 -1 -17/4, -17/4 को लिखेंगे √17/2 होल स्क्वायर। डन। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला था, 1/2a log x प्लस ए, है ना, मोड x प्लस ए अपॉन x माइनस ए, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, और ये माइनस साइन है ना, तो उसको आप अंदर करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कर सकते हो ना ये, तो ये माइनस की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे फॉर्मूला है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन अंदर ले लो, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और माइनस साइन भी चली जाएगी। तो ऐसा ही करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0 to 2 dx, ये हो गया √17/2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर dx। तो अभी ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डन। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या था, 1/a log 1/2a log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा था। सो दिस इज इक्वल टू 1/2a, दिस इज अवर ए स्क्वायर एंड दिस इज अवर एक्स स्क्वायर, है ना। सो 1/2a होगा, यहाँ पर लिख पाएंगे, ट्राई करते हैं, है ना। उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है। तो 1/2a, 2a, a is √17/2, 1/2a log, मोड के अंदर आएगा, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स के लिए न्यूमरेटर में इसका एडिशन और डिनोमिनेटर में इसका सब्ट्रैक्शन। तो इट्स √17/2 प्लस ए, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन यूज करके करना था। तो इट्स x माइनस 1/2 अपॉन, यहाँ पर क्या था, सब्ट्रैक्शन, तो इट्स √17/2 माइनस x माइनस 1/2, है ना। x नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर हमने विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर दिया स्टूडेंट्स, है ना, सब्स्टिट्यूशन करके करना था, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर तो हमारा आ ही जाएगा। सो हियर 0 to 2 लिमिट्स पुट करनी है ना। सब्स्टिट्यूशन करना हो तो क्या करेंगे, x माइनस 1/2, है ना, x माइनस 1/2 इक्वल टू टी लेना है, उसको करेंगे dx इक्वल टू dt। तो जहाँ पर dx है वहाँ पर dt लिखना है, और ये √17/2 तो ऐसे ही रहेगा, और x माइनस 1/2 वो होगा आपका टी स्क्वायर। तो ये जो x माइनस 1/2 आ रहा है ना, वहाँ पर आपका सिर्फ t आएगा, लिमिट भी शायद सेम ही रहेगी। देखो x इक्वल टू 0, नहीं लिमिट चेंज होगी, इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू -1/2 एंड व्हेन x इक्वल टू 2 t विल बी 3/2, है ना। लिमिट चेंज होगी, वो आपको आंसर पुट करना है। डन। तो दोनों मेथड से करके आपको आगे आंसर वेरीफाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हिंट दे देता हूँ, है ना। कितना टाइम बाकी है कुशल? -1 2, हाँ तो चलो फटाफट 7 और 8 सम, है ना, क्या करना है देख लो, ये हो जाएगा आगे कंप्लीट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना, 7 भी देख लो कैसे करना है, ये भी सेम ही है 6 की तरह, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5
है ना। यहाँ पर भी देखो मिडिल टर्म क्या है 2, तो 2 के कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो तो 1 होगा, उसका स्क्वायर कर दो तो 1 ही आएगा। 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इन शॉर्ट 1 ले लेना है प्लस 4 कर देना है। तो दिस इज इक्वल टू -1 to 1 dx, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4, है ना। 1 प्लस 4 5, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल आ गया। जैसे -1 to 1 dx अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, डन। तो इट्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर था हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला, हमने डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन आपको जो सब्स्टिट्यूशन यूज करना है इस एक्सरसाइज में, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी ले लो। therefore our dx will be changed with d, dx equal to dt. Now change the limit. When x equal to -1, so t will be equal to 0. And x equal to 1, t equal to 2. So limits will be changed from 0 to 2. So अभी आपको फाइंड करना होगा 0 to 2 dx, dx is dt, डिनोमिनेटर में होगा x plus 1 is t square plus 2 square, डन। सिंपल टेन इनवर्स है ना, टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका टेन इनवर्स एक्स बाई ए फॉर्मूला, लिमिट अप्लाई करो, आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है देखो, पीछे करते हैं। लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, हियर इट्स अ 1 by x minus 1 upon 2x square e raised to 2x dx। मैंने आपको बताया था e raised to 2x फॉर्मूला का हिंट, है ना, f of x और f dash x साथ में होगा। तो यहाँ पर और सब्स्टिट्यूशन इज 2x पावर है, तो टेकिंग 2x इक्वल टू t, क्योंकि e रेस टू x के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला होना चाहिए, तो टेकिंग 2x इक्वल टू t, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन इज 2 dx इक्वल टू dt, एंड आवर dx विल बी 1 by 2 dt। ये चेंज हो गया। लिमिट्स, लिमिट्स यहाँ पर है 1 to 2, 1 to 2, so when x equal to 1 or t will be 2, and when x equal to 2 or t will be 4, done। So limits will be changed from 2 to 4,